اور اب میں بڑی محبت سے گزارش کروں گی، خوش شکل، خوش گفتار، جاذب نظر، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، انہیں پتہ ہے میں ہی خوش شکل ہوں اور خوش گفتار بھی ہوں۔ شکیل جاذب صاحب اس عہد کے بہت ہی خوبصورت شاعر تشریف لاتے ہیں۔ شکیل جاذب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں خوش شکل پہ متوجہ نہیں ہوا تھا، جب آپ نے جاذب کہا تو اس پہ میں متوجہ ہوا تھا۔ کچھ منٹس کی زحمت ہے، ارادہ تو اظہار خیال کا تھا، لیکن جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سرسری اظہار خیال والی کتاب نہیں ہے، تو میں نے کچھ الفاظ لکھنے کی جسارت کی ہے۔ صاحب صدر سخت نہیں ہے جناب شاہ صاحب اور تمام سینگرز کی اجازت سے حافظ صاحب بیٹھے ہیں۔ سائمہ آفتاب متخلص بفردہ، مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ان کا تخلص فردہ ہے۔ ان کی پہلی کتاب عمر بھر کی بات پڑھتے ہوئے جو پہلا تاثر میرے ذہن میں ابھرا وہ یہ تھا کہ یہ سچی شاعری ہے۔ یہ محض قافیہ پیمائی نہیں، یہ محض فلسفے اور شاعرانہ تخیل کی جگالی نہیں، بلکہ یہ ایک بے باک، خودآشنا اور انسانی جبلت کو ودیعت کیے گئے جذبات و احساسات کی امین شاعرہ کی اپنے ذات کے اندر سفر کرتے ہوئے خود شناسی اور اپنے ماحول اور معاشرتی رشتوں کے ساتھ باہمی تعلق کی گتھیاں سلجھاتی ہوئی سردار عورت کے اندر کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات حساب و شمار سے باہر ہے، لیکن اشرف المخلوقات کا نصف بہتر ایک عجیب و غریب کیمسٹری رکھتا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفروں اور دین و عقل کے نمائندوں نے ہمیشہ عورت کے حوالے سے ایک مسٹری بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ وہ عورت کو سمجھنے کا یا سمجھنے کے قابل سمجھنے کا رسک اس لیے نہیں لینا چاہتے تھے کہ پھر انہیں عورت کو اس کی جسمانیات سے ہٹ کر اپنے ساتھ برابر کی سطح پر بٹھانا پڑتا اور اپنی بلا شرکت غیر چودراہٹ سے دستبردار ہونا پڑتا۔ مگر یہ سلسلہ آخر کب تک چل سکتا تھا؟ بالآخر عورت نے خود ہی اس مسٹری کو ختم کرنے کی ٹھان لی اور مکالمے کا آغاز کر دیا۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی کبھی کشور، کبھی سارا، کبھی فہمیدہ، کبھی پروین اور اب سائمہ کی زبان سے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف کھل کر اعلان بغاوت بھی کر دیا۔ سائمہ کے اس شعری مجموعے میں شعری نیرنگیوں سے قطع نظر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اس شاعری کی بنیادی رمز عورت ہے۔ رونے اور ہنسنے کی کیفیتوں سے لے کر وصل کی سرشاری تک اور اپنے بارے میں اپنے دوسرے نصف کی سوچ سے لے کر اپنے خلاف لکھے گئے استغاثے تک فکری اور فنی لوازمات کے ساتھ ہر موڑ پر، ہر صفحے پر اور ہر غزل یا نظم میں سائمہ ایک بار ضرور رو کر آپ سے پوچھتی ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا عورت اس سلوک کی مستحق ہے؟ عورت کے آنسو، عورت کی ہنسی، عورت کا انکار، عورت کا اقرار، ان سب کو صرف فیس ویلیو پر لینا دراصل عورت کی گہرائی کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مضامین اتنے مدلل اور لطیف شعری پیرائے میں بیان ہوئے ہیں کہ پڑھنے والا ایک حیران کن مسرت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ میرے ان کہکہوں کا راز سمجھو، میرے ان کہکہوں کا راز سمجھو، بسا اوقات ہستی میں نہیں ہوں، آنسوؤں پر تو کچھ نہیں بولے، پوچھتے ہیں ہنسی کے بارے میں، میری مسکان اب بتاتی ہے کیا میری بے بسی کے بارے میں، دو دو اکھیاں نیر بہائیں ساون بھادوں میں، بھر دیں ایک دوجے کا گھاؤ مل کر روتے ہیں، دیکھو پورے چاند کا گولا پیپل میں اٹکا ہے، چپکے سے چھت پر آ جاؤ مل کر روتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں، آپ نے حال ہی تو پوچھا ہے، آپ نے حال ہی تو پوچھا ہے اور اشکوں میں ڈھل رہے ہیں ہم۔ سائمہ کے بنیادی موضوعات میں سب سے بڑا موضوع محبت ہے۔
मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसे हम लोग बड़ी आसानी से मर्द और औरत के खानों में तकसीम नहीं कर सकते। दिल दिल होता है, इसमें मर्द या औरत की तखसीस नहीं होती। और साइमा के यहाँ ये जज्बा इसी सच्चाई और खालिस शक्ल में नमू पाता है। उसके लिए इस कैफियत को इकाई की बजाय ब्लैक एंड वाइट में मापना तकलीफ दे भी है और मायूस कुन भी। वो महज बदन को विसाल का मयार मानने पर राजी नहीं है। वो गुफ्तगू को दो दिलों और दो रूहों के दरमियान हम आहंगी और एक होने की मंजिल समझती है। तभी तो वो ये कहती है, कब वसल से आगे भी कोई बात बढ़ेगी, कब वसल से आगे भी कोई बात बढ़ेगी, कब होगी यहाँ गुफ्तगू आगाज हमारी। ये जो हम मिल के मिल नहीं पाते, ये जो हम मिल के मिल नहीं पाते, इस कमी का मलाल रखिए आप। और सभी ने खेलने को जिस्म इंतखाब किया, धड़कता रह गया सीने में दिल खिलौना पड़ा। इसीलिए इसके यहाँ जिस्म पर दस्तरस होना शायद मोहब्बत की तकमील में एक सद्दे राह भी है। ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ अब तेरे लिए बेकार औरत हो। यहाँ वो इस बुनियादी इंसानी नफ्सियाती नुक्ते की तहलील भी करती है जिसमें इंसानी तबीयत रफ्ता रफ्ता हर उस चीज़ से उकताने लगती है जो उसकी दस्तरस में हो। यही वजह है कि वो चीख कर ये कहती है कि औरत कोई खिलौना या कोई चीज़ नहीं, बल्कि वो इंसान का अपना निस्फ है, इंसान का अपना आप है। औरतें देखने की चीज़ हैं क्या, इनको सुनते नहीं हो ध्यान से तुम, कम तरी दे खुदा का ज़र्फ नहीं, झूठ घड़ते हो इस बयान से तुम, है बराबर का हक हमारा भी, मत धकेलो हमें मकान से तुम, और ये ख़ता मुझ पे थोपते क्यों हो, खुद ही निकले थे आसमान से तुम। मैं यहाँ बिलखसूस जिक्र करना चाहूँगा साइमा की नज़्म इस्तग़ासा का। मैं समझता हूँ ये नज़्म साइमा की शायरी की रूह है। ये नज़्म दरअसल औरत की वो दर्द में डूबी हुई चीख है जिसे शायरी की ज़बान में गज़ल कहा गया है। गज़ल शायरी की हैत का नाम है या नहीं, साइमा की गज़ल मुझे इस नज़्म में सुनाई दी। साइमा की नज़मों में बहुत तनव्वु है। हमारी मसनूई सतही और खोखली मोहब्बत या दर हकीकत हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया उनकी नज़्म चाय खाना में बयान होता है, जिसे चाहें तो चस्के के लिए पढ़ें और चाहें तो इसमें मुनाफ़कत भरी ज़िंदगी का चेहरा देखें जो शायद हम में से बहुत लोग गुजार रहे हैं। यह आपकी अपनी इस्तेदाद पर मुनहसर है। इसी तरह उसकी नज़्म क्या ये मुमकिन है उस औरत की ऐसी ख्वाहिश का इजहार है जिसे कमतर समझा गया, मगर ये ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए तो उस तलखी को किसी हद तक गवारा बना सकती है। उसकी एक और नज़्म जिस्म भी हमारे मुआशरे की ऐसी ही तल्ख मगर नंगी हकीकत को आश्कार करती है जिससे हम सब आंखें चुराते हैं लेकिन उसी के हाथों में खेलते भी हैं। मैं तवालत के खौफ से ये नज़में नहीं लिख रहा, दूसरा ये भी चाहता हूँ कि आप खुद ये नज़में पढ़ें। कुछ नज़में वाक़याती और फरमाइशी हैं मगर उनमें इस्ताराती हुस्न और शेरियत भी कमाल की है। इसकी एक उम्दा मिसाल उनकी नज़्म अनाज़ादे है। साइमा की शायरी और उस शायरी का एक और ज़बरदस्त और हैरान कुन पहलू उनकी बेबाकी, मामलाते हुस्न इश्क में खरा और सच्चा होना और तकल्लुफ़ात को वारिफ्तगी और सरशारी के मुकाबिल दरख़ुरे एतना न समझना है। अमूमन हमारे यहाँ मर्द के हवाले से ये समझा जाता है कि आशिक की हैसियत से इज़हार मुद्दा उसी की जानिब से होगा और महबूब जवाबन हिचकिचाहट, इनकार या मशकूक सी हाँ में जवाब देगा। लेकिन साइमा ने इन समाजी तौर पर तफवीज़ किए गए किरदारों और इनके साथ मंसूब रद्द अमल को मुस्तरद करते हुए अपने किरदार को खुद लिखा है और उसे पूरे तमतराक और शिद्दत के साथ निभाया है। वह हकीकी मानों में अपने आप को इन रवायती समाजी और मुआशरती पाबंदियों में कैद नहीं समझती जो बहैसियत औरत उसे इजहार की शिद्दत से रोकती है। उसका शायराना इजहार बड़ा बरजस्ता और दो टोक है। दो जहानों से बरसरे पैकार,
एक पहलू में बेखबर सोए। ये वक्त बाग महकने का है, जगाओ उसे, जो शख्स ख्वाब सरा में क़याम कर रहा है। अना की भेंट चढ़ा दे मगर ये ध्यान रहे, मैं ज़िंदगी हूँ फ़कत एक बार दी गई हूँ। और ख़ास तौर पर ये गज़ल वारिफ्ता व सरशार व फ़िदा चाहिए मुझको, यानी दम आगाज़ जो था चाहिए मुझको। एक शख्स मुझे शौक़ दो आलम से सिवा है, जितना भी मिले मेरे खुदा चाहिए मुझको। कब तक ये छुपेगा आपस इजहार मोहब्बत, इजहार हवस है तो जुदा चाहिए मुझको। कहो अब फल भी चखूं या न चखूं, कि ममनुआ शजर तक आ चुकी मैं। साइमा के यहाँ फितरत के मज़ाहिर, अपने गिरदो पेश के रंग और ज़िंदगी से मोहब्बत, ज़िंदगी की अलामतें, ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार ज़रूरी हुनर, इन सब मज़ामीन का इजहार बड़े सलीके, स्वभाव और शेरी रवायात के ऐन मुताबिक हुआ है। हो सकता है इसमें उसके घरेलू माहौल की कार फरमाई हो, जिसमें उसने अपने वालिद सैयद आफ्ताब शाह साहब को शेर कहते देखा हो, या उस तर्ज ज़िंदगी का अक्स हो जो सिविल सर्विसेज के तुफैल आपके मुकाबिल खड़ी होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि शायरी जैसी मुनफरिद और कामयाब सलाहियत किसी विरासती निज़ाम के ज़रिए मुंतकिल होती है। और सिविल सर्विसेज में आने के बाद तो आपको बहैसियत शायर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स या क्लर्क, इन सब की शायरी को वो चैलेंज अबूर नहीं करने पड़ते जो एक सिविल सर्वेंट के मुकाबिल मजलिसी शोरा की जमात ला खड़ा करती है। अगर आप खुदा न खास्ता बेरोज़गार हैं तो आपकी शायरी की कबूलियत के लिए ये एक इजाफी सिफत समझी जाती है। सिविल सर्वेंट्स के लिए मुर्तज़ा बरलास का ये शेर हर दौर में सादिक रहा है। दोस्तों के हलके में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। बहरहाल जो भी उर्दू शेरी रवायत से आशना है वो साइमा की शायरी पढ़ते हुए इन अशार पर ज़रूर रुकेगा और इनसे हज़ उठाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चंद मिसालें पेश करूँगा, वरना किताब में ऐसे अशार बकसरत मौजूद हैं। अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा। हाय ये फ़िक्र कायनाती फ़िक्र, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। उफ़क़ पे फैला हुआ है फ़िराक़ यार का रंग, उफ़क़ पे फैला हुआ है फ़िराक़ यार का रंग, उदास शाम मेरी गोद में पड़ी हुई है। हमने इस पर कभी न ध्यान दिया, एक इम्कान था हमारे बीच, जिंदगी का निशान बाकी है, पेड़ पर घोंसला बना हुआ है। अपने हर खौफ के मुकाबिल हूँ मैं किसी बेहिजाब की सूरत, मैं ज़मीं की परवरदा और वो आसमानी है, मैं ज़मीं की परवरदा और वो आसमानी है, नीलगू है पग उसकी मेरी शाल ढानी है। तय किया है उजलत में दश्त ज़िंदगी हमने, तय किया है उजलत में दश्त ज़िंदगी हमने, धूल में लपेटे हैं चांदनी के मंजर भी। जाती है जो मताए दिलो जां तो क्या मलाल, ये इश्क की दुकान है खसारा तो होगा ना। और होते हैं राह के पत्थर, हम तो रस्ते की धूल होते हैं। सब आस पास के मंजर हटाना पड़ते हैं किसी को जाते हुए दूर देखने के लिए। शेर देखें कि जाते जाते गले लगाता क्या, जाते जाते गले लगाता क्या, वो मेरा और दिल दुखाता क्या। एक तो आईना है दावेदार, और किस किस का कल रहे हैं हम। तर्क कीजिए जुनून कब्जे का, तर्क कीजिए जुनून कब्जे का, दिल अजियत भरा इलाका है। और मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुर सिखाती थी। मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूँ। तो साइमा, तुम वाकई सरदार औरत हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें ज़िंदगी के गुर आते हैं, या तुम ये गुर अपने भाइयों को सिखाती थी। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सरदार औरत इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि तुम ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारोगी। तुमने हर उस खौफ को ललकारा है जो औरत को इंसान होने के एहसास से कमतर बनाने की कोशिश करता है। तुमने अपने मकाम और अपने मर्तबे को पहचाना है और इस पर किसी भी किस्म के समझौते से इनकार किया है। दुनिया को
یہ وارے میں نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں دنیا کے ہاتھوں میں سوائے تحقیر اور تہمت کے پتھروں کے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن تمہارا وجدان تمہیں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے، آ لگا مجھ کو آخری پتھر، آ لگا مجھ کو آخری پتھر، اب مکمل ہے پارسائی میری۔ تمہاری شعری توفیقات اور تمہاری تخلیقی وسعت کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں تمہاری کتاب عمر بھر کی بات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور تمہیں تمہارے حوصلوں اور فکری اور شعری جرت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔